अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? चले, परफेक्ट है। लास्ट अटेम्प्ट का पास पेपर है जो आप आज की लास्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस भी करना है। ठीक है, क्विकली इसे जो है वो अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करें। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर इसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। 12 मिनट्स हैं आपके पास, फिर हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, विद इन टाइम, ये आपने देखना है कि विद इन टाइम अटेम्प्ट करें। और जिसने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 8A और 8B भी डिस्कस करें। फिर हम इन सबको जो है वो एक साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो है वो ड्राफ्ट करें प्रॉपर आंसर को। ये लास्ट सेशन है जो हम आपके साथ डिस्कस करें, तो कोशिश करें कि इसको पूरा अवील करें। अच्छा चलें। जबरदस्त भाई। मुसव्विर कह रहे हैं स्ट्रेट क्वेश्चन है। चलिए जबरदस्त, अभी हम डिस्कस करते हैं। चलें, अब मेरे साथ रहेंगे सब। White Diamond Limited was incorporated on 6 February 2021. ठीक है, all the subscribers to the memorandum of WDL has paid the share money except Ejaz, who has subscribed 4,000 shares and is willing to make payment before 10th March 2021. WDL's management intends to start the operations. देखिए, अब यहाँ से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये स्टार्ट दी ऑपरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है पब्लिक कंपनी की तरफ से। ठीक है, सेक्शन 19। ठीक है, WDL's management intends to start the operations of the company immediately since minimum subscription, ये दूसरा हिंट है, amount is not fixed in WDL's memorandum and the articles of the association. Accordingly, for the purposes of commencement of business, they intend to submit requisite documents with the registrar. The management is confident that the registrar will accept and register all the documents. Under the Companies Act 2017, determine the Ejaz status in WDL and determine the Ejaz status in WDL number 1 and discuss the implication, if any, towards him as well as WDL if he makes the payment before 10th March 2021. Explain WDL's duties if all the subscription money is received on or before 1st March 2021. देखिए, इसके अंदर बेसिकली जो है वो दो सेक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। अगर आप मेरे साथ हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो वन ऑफ ये अच्छा डिफिकल्ट नहीं है। वंस अगेन मैं एग्री करता हूँ मुसव्विर की बात से, लेकिन क्योंकि ये यूजुअली यहाँ से टेस्ट नहीं होता है, इसलिए समटाइम्स आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। तो मैं पहले आपके लिए जो है वो सेक्शन रीड कर देता हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो। कर दूं, मैं सेक्शन रीड कर दूं आपके लिए? ठीक है, अच्छा सुने, सुनेंगे। Effect of memorandum and articles. The memorandum and articles shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by each member and contained a covenant on the part of each member, his heirs, and legal representatives to observe and be bound by all the provision of the memorandum and articles subject to the provision of this act. ठीक है, ये एक बात। अब सुने। All monies payable by the subscriber in pursuance of his undertaking in the memorandum of association against the shares subscribed shall be a debt due from him and be payable in cash within 30 days from the date of incorporation of the company. ठीक है, ये याद रखेंगे। Provided that in case the share money is not deposited within the prescribed time, the share shall be deemed to be cancelled and the name of that subscriber shall be removed from the register, and the registrar shall give such direction to the company in each case as deemed appropriate for compliance with the provision of the company law.
The receipt of the subscription money from the subscriber shall be reported by the company to the registrar on a specified form within 45 days from the date of incorporation of the company, accompanied by a certificate by a practicing chartered accountant or cost and management accountant verifying the receipt of the money so subscribed. ठीक है, ये आपके पास एक सेक्शन है. ठीक है, यहाँ तक सब साथ हैं. यानी इसमें दो तीन बातें हैं. एक तो ये कि भाई आपने विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन पैसे देने हैं. ठीक है, अगर आप नहीं देते तो क्या हो जाएगा कि ये डेट ड्यू फ्रॉम आपकी तरफ से होगा और आप विद इन 30 डेज देंगे. अगर आप नहीं देते तो उस केस के अंदर आपकी जो द शेयर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. अच्छा, ये इसी तरह से अगर आप रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन हो जाती है फ्रॉम सब्सक्राइबर्स तो आपने क्या करना है, कंपनी को चाहिए कि रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करे विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, accompanied by a certificate by a practicing chartered accountant or cost and management accountant verifying the receipt of the money so subscribed. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं. यहां तक सब साथ हैं. ठीक है. अच्छा, अब सुने, अब और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है, अब सेक्शन 19, 2 सेक्शंस इंटरैक्ट करें यहाँ पे. ठीक है, एक ये वाला सेक्शन था, एक दूसरा. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी. अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट स्टार्ट इट्स ऑपरेशन और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर्स अनलेस shares held subject to the payment of the whole amount thereof in cash have been allotted to an amount not less than in the whole than the minimum subscription the money has been received by the company. जो minimum subscription है वो आपने receive कर लिया. Every director of the company has paid to the company full amount on each of the share taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash. No money is or may become liable to be repaid to the applicants. अच्छा, फिर यहाँ से दूसरी सारी, और फिर इसके बाद there has been filed with the registrar a duly verified declaration by the chief executive or one of the directors and the secretary in the specified form that aforesaid conditions have been complied with. And in case, और फिर पब्लिक कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस की बात करें. अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसको भी जरा सुन ले. Minimum subscription means the amount, if any, fixed by the memorandum or article of association as minimum subscription upon which the directors may proceed to allotment, or if no amount is so fixed and specified, the whole amount of the share capital other than the issued or agreed to be issued as paid up otherwise than in cash. ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मेरे साथ में रिकॉल हो रही है सारी चीजें आपको. अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा आंसर के ऊपर. अब आ जाते हैं जरा आंसर के ऊपर. ठीक है, आंसर पे आने से पहले, अच्छा मैं टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि शायद जो है वो जिसने किया हो उसने भी जो है वो शायद थोड़े से इश्यूज किए हो. ऐसा ही है. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 डिटरमिन द एजाज स्टेटस इन WDL. पहले ये बताएं मुझे, स्टेटस ऑफ एजाज क्या है. अच्छा, कोई कह रहा है कि सब्सक्राइबर है, कोई कह रहा है मेंबर है, कोई कह रहा है डेटर है. ठीक है, तो भाई ये तीनों बातें सही हैं और ये तीनों बातें लिखी भी जाएंगी कि सब्सक्राइबर भी है. ठीक है, क्योंकि अग्री किया उसने कि वो सब्सक्राइब करेगा तो इसलिए मेंबर भी बन गया. ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी तरफ से अमाउंट ड्यू है तो ये डेटर भी है. मेरे साथ हैं. अच्छा, इम्प्लीकेशंस टू एजाज क्या होंगी. अभी मैंने डिस्कस किया सेक्शन 17 के अंदर. वेरी गुड उमर, वेरी गुड. अच्छा, देखें अब विद इन 30 डेज फ्रॉम WDL इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपने पेमेंट करनी है. इसका मतलब क्या हो गया, कब तक करनी है, कब तक करनी है. इनकॉर्पोरेशन कब हुई है आपकी एग्जैक्टली अगर आप काउंट करें तो कब तक बनती. वेरी गुड, 7 मार्च तक. ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही है ना, अभी बात की हमने इसके ऊपर कि भाई आपने कब तक जो है वो पेमेंट करनी है.
7 मार्च तक, अदरवाइज फिर आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसने कहा है कि डिटरमिन द एजाज स्टेटस इन डब्ल्यूडीएल एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन इफ एनी टुवर्ड्स हिमसेल्फ, इस पे बात कर ली, एज वेल एज डब्ल्यूडीएल, यानी इम्प्लीकेशंस ऑन डब्ल्यूडीएल क्या है, जरा ये भी बता दें भाई जल्दी जल्दी। इस पे भी अभी मैंने सेक्शन रीड किया तो उसके अंदर इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब इसके अंदर आपके पास जो डब्ल्यूडीएल की इम्प्लीकेशंस है वो क्या क्या आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने, अभी हमने कहा ना कि अगर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए डब्ल्यूडीएल का लिंक किस चीज के साथ है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ है, तो अगर फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन विद इन टाइम नहीं आती, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, अगर विद इन टाइम आ जाती है तो ठीक है, आप जो है वो एक एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि सारी कंडीशंस पूरी हो गई, हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन विद इन टाइम नहीं आती, 7 मार्च तक नहीं आती, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप कमेंस नहीं कर सकते बिजनेस, ठीक है। फिर उस केस में क्या होगा, जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रखी है, क्योंकि आपने कोई अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं की हुई, तो इस केस के अंदर क्या होगा, सारा का सारा जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो पेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस के अंदर क्योंकि एजाज तो गया, क्योंकि 30 डेज के अंदर उसने पेमेंट नहीं की, तो अगर उसने 30 डेज में पेमेंट नहीं की तो फिर जाहिर है वो डायरेक्टर भी था, तो अगर डायरेक्टर था तो फिर उस केस में क्या होगी, कैजुअल वैकेंसी होगी विच शैल बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग ऑफ द डायरेक्टर्स। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बाद कहता है एक्सप्लेन द डब्ल्यूटीएस ड्यूटीज, अब ड्यूटीज की बात कर रहा है, इम्प्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा। if all the subscription money is received on or before 1st March 2021, it means कि within 30 days of incorporation अगर आपको subscription money आ जाती है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब ड्यूटी की बात कर रहा है, अब इम्प्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा, तो ड्यूटी क्या है कि अगर आपके पास अमाउंट आ गई तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी विद इन 45 डेज अगर आप काउंट करें तो कब तक होते हैं, डेट एग्जैक्टली लिखना जरूरी है, कब तक होंगे ये डेज, ठीक है, आप स्ट्रेट है ना, ये तो 22 मार्च बनता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 22 मार्च तक। अच्छा, फिर आपने जो है वो साथ में क्या देना है, रजिस्ट्रार को बताना भी है और सर्टिफिकेट भी देना है कि भाई रिसीव, जो मनी मतलब जो भी आपके पास अमाउंट था, जो सम था, वो क्या हो गया, वो रिसीव हो गया है, ठीक है। ये तो एक चीज है ना, इसके अलावा आप क्या और क्या करना होगा आपको, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव और एनी वन ऑफ द डायरेक्टर क्या करेगा, अलोंग विद द सेक्रेटरी क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा, किस चीज के लिए, कि भाई जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, वो आपने जो है वो शेयर्स के अगेंस्ट जो है वो रिसीव कर लिया है, ठीक है, और जो भी डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए थे उन्होंने जो है वो अमाउंट जो लाइबिलिटी थी वो भी पे ऑफ कर दी है इन कैश। सब मेरे साथ है यहाँ तक। तो दो सेक्शंस का समरी थी ये पूरा क्वेश्चन जो था, एक सेक्शन 17 लिख भी ले अपने पास, और एक सेक्शन 19। क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलें, अब यहाँ से आपकी जो जिंदगी है वो आसान होना शुरू हो गई, ठीक है। अभी अब तो अब इजी इजी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बताएं भाई, list 10 contents of the directors report of a public unlisted company as prescribed under the Companies Act 2017।
क्या क्या कंटेंट्स हैं बताएं। मैं आपको बताता हूँ, देखें, आपने 3 तरह के कंटेंट्स पढ़े थे अगर आपको याद हो। ठीक है, एक जनरल कंटेंट्स थे, ठीक है, फिर इसके थे, फिर आखिर में थे लिस्टेड कंपनी वाले। तो लिस्टेड कंपनी के अलावा अगर मुझे यहाँ पे मिल भी जाते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये सेक्शन 227, ये वाला और ये वाला, लास्ट वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किससे पर्टेन करता है, ये लिस्टेड कंपनी से पर्टेन करता है। तो जनरल कंटेंट्स और एडिशनल कंटेंट्स बाय पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये वाला जो है वो इसके अंदर, ये और इसमें से टोटल मिला के आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्लियर है, मेरे साथ हैं? साथ हैं सब? अच्छा जी, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ OL, a listed company for the year ended 31st December 2020, was held on 1st March 2021. All the presented agenda items were approved at the meeting except for the adoption of annual financial statements. In the light of the Companies Act 2017, discuss the requirements of OL must comply with for filing its financial statements. सेक्शन 227 आप जाके देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स वहां लिखे हुए सुफियान। जी जी जी, बताएं इसका आंसर क्या होगा। In the light of Companies Act 2017, discuss the requirements OL must comply with for filing its financial statements. सिंपली आप क्या करेंगे, आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फर्निश करेंगे, ठीक है, विद द रीजन के क्यों अडॉप्ट जो है वो नहीं हो सके। ठीक है, कितने डेज में आप रजिस्ट्रार के पास फर्निश करेंगे? विद इन 30 डेज। सब साथ हैं, आगे मूव करें हम। चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करें, ए और बी फिर बात करते हैं। क्या लिखेंगे इसके अंदर था ना कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास के राइट्स को अफेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या आप जा सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। उसके लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स हों। ठीक है, आप ज्वाइंटली भी ओन कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। और फिर आपने एप्लीकेशन कितने टाइम के अंदर फाइल करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रेजोल्यूशन आप जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ग्राउंड्स क्या होंगे, कोर्ट किस बेसिस पे डिसीजन लेगा कि या तो कोई फैक्ट्स जो है वो आपके डिसीजन के अंदर विदहेल्ड किए गए, या फिर ये अनफेयरली प्रीजुडिस है टू द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। इन इस बेसिस के ऊपर वो क्या कर सकता है, वो आपके फेवर के अंदर डिसीजन दे सकता है। अग्री करते हैं इससे?
लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपको मर्केंटाइल लॉ का नहीं बता रहा, लेकिन कंपनीज एक्ट का मैं आपको ये बात बड़ी चैलेंज से बात कह रहा हूँ कि अगर आपने पॉइंट्स क्लियर लिख दिए ना, देखिए पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि वन वर्ड लिख के आ गए, कोर्ट लिख के आ गए, ऑर्डर लिख के आ गए, नहीं। आपने ड्राफ्टिंग जैसी भी है आपकी, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया जिसमें जो है वो पॉइंट कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास होने के चांसेस ब्राइट है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास, आपने सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि भाई कुछ चैलेंज कहाँ होगा, कोर्ट में होगा, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप क्या बताएंगे कि इसके पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। कलेक्टिवली भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, कितने डेज में करना है, विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रेजोल्यूशन। कोर्ट क्या चीजों को देखेगा? कोर्ट देखेगा कि कोई फैक्ट्स विदहेल्ड तो नहीं हुए या फिर अनफेयरली प्रीजुडिशियल तो नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरा एक जो है वो सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। सब मेरे साथ हैं? अच्छा जी। इन द जनरल मीटिंग ऑफ रेड Coral Limited, while discussing one of the agenda item, two of the members, Yasmin and Yamin, wants to demand the poll. Under the provision of the Companies Act, advise the chairman whether they are eligible to demand the poll. Also discuss the procedure to be followed for taking the poll in the general meeting. जी, कब पोल डिमांड कर सकते हैं? एलिजिबल है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? क्या होना चाहिए आपके पास, कितने शेयर्स होने चाहिए कि आप डिमांड कर सकते हैं? आपके पास एटलीस्ट 10% के वोटिंग शेयर्स हों तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप किस चीज के लिए, पोल डिमांड करने के लिए। अच्छा भाई, प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये पोल इमीडिएट वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, तो आप विद इन 14 डेज, चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पोल को कंडक्ट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन से पर्टेनिंग नहीं है, तो विद इन 14 डेज आप जो है वो कर सकते हैं, वरना फोर्थ करना पड़ता। अच्छा, रेगुलेट कौन करेगा इस पोल के अफेयर्स को? हमने कहा भाई चेयरमैन रेगुलेट करेगा, ठीक है, और फिर साथ साथ चेयरमैन का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, लेकिन जो है वो साथ साथ यास्मीन और यामीन का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा जो वोट्स की स्क्रूटनी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? हमने कहा चेयरमैन अनाउंस करेगा। डिसीजन किसका फाइनल होगा? ठीक है, हमने कहा भाई डिसीजन चेयरमैन का फाइनल होगा, और ये डिसीजन किस दिन का होगा? जिस दिन जो है वो पोल आपका कंडक्ट हुआ उस दिन का ये डिसीजन ट्रीट किया जाएगा। सब मेरे साथ हैं? चले भाई, क्विकली जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करें। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा कि भाई रिजल्ट ऑफ द पोल कब का होगा? जिस दिन आपने पोल कंडक्ट किया है उस दिन का डिसीजन ट्रीट होगा, ये रिट्रोस्पेक्टिव, इसकी इंप्लीकेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 A एंड B जल्दी से अटेम्प्ट करें। ठीक है, वेरी गुड। देखें, अब इसके अंदर आप सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस दिन ये इवेंट हुआ है, इन एलिजिबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है कि जब आप इन एलिजिबल हो गए तो उस दिन से विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसे आप इप्सो फैक्टो भी कहते हैं, आप क्या हो जाएंगे? आप जो है वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकते, ठीक है। और ना सिर्फ इस कंपनी के, बल्कि आप क्या हो जाएंगे, ठीक है, आप जो है वो किसी और कंपनी के भी, किसी और लिस्टेड कंपनी के भी जो है वो आप चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। ये ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, कह रहा है ना कि भाई पीएल पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, तो पीएल पे क्या इम्पैक्ट होगा? पीएल को चाहिए कि नया चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आ जाए, कितने डेज के लेके अंदर लेके आ जाए? विद इन 14 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी लेके आ जाए। और दूसरी बात कि जो डिसीजन पीएल के अली ने जो है वो किए होंगे, ठीक है, बिफोर सीजिंग टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव, वो वैलिड रहेंगे। हाँ, ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो कब से होगा? ये प्रोस्पेक्टिवली होगा। सब साथ हैं यहाँ तक?
चलिए मैं एक दफा से फिर बता देता हूँ। देखिए इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर जो है वो आप सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई नंबर वन, तलहा रशीद खान कह रहे हैं कि ये फिर से रिपीट कर दे, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखें तलहा, इसके अंदर इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है डायरेक्टर्स के टॉपिक में, और चीफ एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो वहां पे ये कहता है कि जो इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डायरेक्टर्स का है वही हमारा भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप जो है वो अली अली पे इम्पैक्ट क्या होगा कि वो विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पाउस जो है वो अपॉइंट हो गई एज ब्रोकरेज, एज डायरेक्टर इन दी ब्रोकरेज हाउस। ठीक है, और फिर हमने कहा कि इस केस के अंदर एज ए रिजल्ट इम्पैक्ट क्या आएगा कि क्योंकि ये इनएलिजिबल हो गया तो किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, किसी और लिस्टेड कंपनी का। ठीक है, और ठीक है, और कंपनी पे क्या इम्पैक्ट है, तो हमने कहा भाई कंपनी को चाहिए कि कैजुअल वैकेंसी आ गई विद इन 14 डेज इसे जो है वो पूरा करे। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट है कि इसके जो डिसीजन इसने लिए, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही सब। अच्छा जी, in February 2021, STL acquired 18% voting shares in GL. After acquisition, STL nominated one of its director on GL board. STL board is planning to acquire 10% voting shares in GL in May 2021. Under the Companies Act 2017, discuss the conditions which STL must fulfill before taking any further acquisition of shares in JL. अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी के चैप्टर से आया है। इसके अंदर पहली बात ये कि देखें क्या ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है नहीं है, तो उसके लिए आपने ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एसोसिएट्स है नहीं है। तो आपके पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई एक डायरेक्टर, एसटीएल नॉमिनेटेड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑन जीएस बोर्ड, एक डायरेक्टर जो इधर भी है और उधर भी है, इसकी वजह से क्या हो गया, कॉमन डायरेक्टरशिप हुई। जब कॉमन डायरेक्टरशिप हो गई तो क्या हो गया, एसोसिएट्स हो गए। जब एसोसिएट्स हो गए तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए जरूरी क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए, और उसके अंदर आप क्या क्या चीजें बताएंगे, नेचर बताएंगे, पीरियड बताएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट कंडीशन, ये सारी चीजें जो है वो आप उसमें बता रहे होंगे। सब मेरे साथ हैं? Identify any four criteria on the basis of which a company formed under Section 42 of the Companies Act 2017 differs from other limited liability company। 4 मार्क्स 4 मिनट, जल्दी से लिखें और फिर बात करते हैं।
देखें इसमें 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 आपके पास जो पॉइंट्स है वो आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई एनी फोर क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, अब क्या क्या बताएंगे आप इसके अंदर। एक बात तो ये है कि भाई नॉर्मली कंपनी सिर्फ इनकॉर्पोरेट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेती है, यहाँ पे इसे क्या लेना पड़ेगा, इसे जो है वो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर लाइसेंस जो है वो ऐसे नहीं मिलता। बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ जो है वो पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी तो है लेकिन पब्लिक कंपनी फॉर्म हो सकती है, वेरी गुड। और इसी तरह से आपके पास ये जो लाइसेंस है ये स्पेसिफाइड कंडीशंस के साथ होगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के साथ होगा। ठीक है, जो कि नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में नहीं होता। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? बिल्कुल सही है फुजैल, एडिशनल कंडीशन भी एससीसीपी इंपोज कर सकता है। सब साथ हैं यहाँ तक? चलिए ग्रेट। तो यहाँ पे हमने अपना प्रैक्टिस का जो सेशंस थे, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने लेटेस्ट जो रिसेंट 3 पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे उसको जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, होपफुली आपको जो है वो इसमें असिस्टेंस भी जो है वो मिली होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करेंगे। इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, या उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं जहां पे पहले खड़े हुए थे? ठीक है, अब मैं आपको वो टिप्स बता देता हूँ जिसके थ्रू जो है वो आपको अब लेके चलना है। बिल्कुल है, सारे ये प्रैक्टिस मटेरियल आपके एआरटीटी की बुक शॉप पे रखा है हमने, कोई अराउंड 500 एमसीक्यूज हैं कि जो प्रैक्टिस मटेरियल की फॉर्म में एआरटीटी की बुक शॉप पे रखे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो देखें अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जितने भी रिसेंट हमने पास पेपर्स किए ना, हमने इससे पहले जब क्लास में कर रहे थे तो हमने टॉपिक वाइज तो वैसे भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमने रिसेंट पास पेपर्स किए तो इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें मेजर जो क्वेश्चन है, सिवाय एक आध क्वेश्चन के जो आपकी जो है वो टफ हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप सेलेक्टिव स्टडी देखें, इसने इन्वेस्टमेंट से पूछ लिया, कमेंसमेंट से पूछ लिया, शेयर कैपिटल से पूछ लिया, ये वो सेक्शंस थे कि जहाँ जो नहीं टेस्ट होते यूजुअली। ठीक है, लेकिन इसने टेस्ट किया, तो इसलिए सेलेक्टिव स्टडी की बेसिस के ऊपर आप अगर जाते हैं तो आपको पेपर डिफिकल्ट इसलिए लगेगा कि आप वो टॉपिक छोड़ के चले गए जहां से उसने पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी ना करें। ठीक है, हाँ मैं फिर ये कहूंगा कि अब आपने एक पैटर्न आपने देख लिया, अब इसी पैटर्न के ऊपर आप जो है वो, अभी तो हमने सिर्फ ये अटेम्प्ट किया ना, अब आप एक काम ये करें कि पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, पूरा पेपर इंक्लूडिंग मर्केंटाइल लॉ, आप जो है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम डेडिकेट करें और डेली बेसिस पे एक पेपर जो है वो इस पीरियड के अंदर अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, पॉइंटर्स नहीं। ठीक है, प्रॉपर अटेम्प्ट करें और फिर उसको जो है वो आप पास पेपर से चेक कर सकते हैं। यूजुअली लॉ के पास पेपर्स में इतना इशू नहीं होता, तो आप वहां से चेक भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। ठीक है, और जहां कोई कंफ्यूजन हो वहां पे फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करें। अच्छा देखें, अब इसके अंदर पेपर में पहले एमसीक्यूज करें या क्वेश्चंस करें?
देखें, जो आपको सबसे अच्छा आता है सब पेपर में सबसे पहले वो करें। अब अगर आपको मर्केंटाइल लॉ का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एग्जांपल, फिर कंपनीज एक्ट का जो पार्ट है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 से लेके 10 तक सीक्वेंस में करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, क्वेश्चन का पार्ट नंबर सही होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बी नहीं लिखे, पार्ट बी नहीं लिखे, 10 भी लिख दें, 8 भी लिख दें, 9 भी लिख दें, आप इस पार्ट वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सबसे अच्छा आता हो, ये जरूरी नहीं है कि आप एमसीक्यूज करें या पहले ये अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करें, आपको जो सबसे अच्छा आता हो आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें। क्लियर है गुलाम मुबश्शिर साहब, क्लियर है आपको? चलें चलें, बेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह जो है वो ऑल दी बेस्ट विशेस विद यू। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, जवेरिया से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो। ठीक है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं कमिटमेंट नहीं करता, कोशिश करेंगे कि हम जो है वो अगस्त के एंड पे एक जो है वो छोटा सा रिवीजन का सेशन रखें। रिवीजन का अब प्रैक्टिस कर लिया, अब रिवीजन पे आएंगे हम एंड पे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि उसको भी शेड्यूल कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर वो शेड्यूल करते हैं तो उसमें आपसे मुलाकात होगी, अदरवाइज ये कि फिर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एनीवेज, अल्लाह हाफिज़।